Yes. So, Jai Shri Krishna. Jai Shri Hello, Krishna. everybody. Thank you for joining in, and we would like Shreyans Jhamar to please give his introduction, as he's the educator with Chit Chat with Represents OIT as an educator. So, Mr. Shreyans Jhamar, we would love that if you give your introduction yourself. Yes, I requested you guys not to introduce me because I just want to Yes. break a chain. You know. Is everything fine? I don't know what's happening. Wait a minute. So, please give your introduction. Yeah, Okay, we'll start all over the once app again. the app has just vanished from my screen. Just a minute. Oh, I don't know what's going on. I'm seriously not doing it's okay, it's our first time too. So let's just it. restart again. Say, Yeah. Jai Shri Krishna. Thank you for joining in, Mr. Shyam Chavar, as an educator and accepting our invite. We ask, welcome everybody to represent Chit Chat with an educator who is in youth, as a youth, and we would have you introduce yourself. Yes. Can you see me? Yes. Okay, because I don't know, my camera is not working. I can't see you guys. But okay. We can see you I clearly. request you guys not to introduce me because I just want to break a chain. I don't like how people are introduced traditionally. Like कि यहाँ से बीटेक किया, then PhD किया, and he is working right now. You know, एक जोक सुना था बहुत पहले कि we ask a person कि उसकी डिग्री क्या है या उसका प्रोफेशन क्या है ये देखने के लिए कि how much respect we should give him. So that's not how things should work in an ideal Correct. way. That's not why what I endorse. और मैं स्टूडेंट्स को भी यही बोलना चाहूंगा कि दैट्स नॉट व्हाट मैटर्स टू अस, ताकि उन पे टेंशन ना आए इस चीज की कि अरे ये करना है तभी रिस्पेक्ट मिलेगी सोसाइटी में and all that. तो इंसान है. सही। तो मतलब आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता दो ना कि आप करते क्या हो। सॉरी, मुझे सुनाई नहीं दिया. या टेल मी अगेन. आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता दो कि आप करते क्या हो। Like what I'm is an your educator. work that you do? I'm an educator. It's my current profession. That's what, of all the things that I like to do, I like, right now I like to do this. That's why this is me as an educator. और भी बहुत चीजें हैं. It doesn't define me as a human being. मैं बहुत ज्यादा चीजें पसंद करता हूँ. I am a human being. And अभी बस I am an educator. बाद में शायद I'll be a writer or something. I'll be owner of a school. Right now I am this. Nice. So we'll just start with the questions. So how Yes, did we you, should. from a BTech student, decide to teach out of nowhere? Usually the mainstream is to become an engineer or something along those lines. Yeah. Can I just take 1 minute and join you guys again? Because I am having connectivity Yeah, problem. sure. Just 1 minute. Okay. Sure. Uh, till then, you guys can tell something motivating to the viewers. I'm so sorry. So guys, if you guys have any questions regarding what you should be doing after your graduation or anything like that, please do drop in questions and we're free to ask him the questions that you ask. So please do not like not say. So we're gonna have a session all about beyond conventional ways of education and how Mr. Sriraj Savar doesn't believe in any of the conventional ways of any type of thing. Like just now you heard him. I don't like how he doesn't that it's right to be introduced Yeah. and to have an introduction given beforehand, and that should be
how the person should be respected based on their educational values or skills. So please drop in all your questions if you have any regarding education system or anything regarding those lines. Hi, I'm back. Am I Hi. audible to you guys now? Finally things are working how they're supposed Yes, to. you are now Yes. pretty much Now more let's start. better than. Okay, so we'll Yes, start let's all start with again. Q&A now. And yeah. Okay, so this one's what? Retake. Yeah, one more retake. Yes, greetings. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. Welcome everybody to represent Chit Chat with Youth, OM, Youth and Educator. So we have Shreyansh Ravar today as a youngster who's also an educator. So Shreyansh Ravar, a few words for yourself. Like we know that you do not want introduction, but a little brief once again. Acha, once again. Hi, I'm Shreyansh Chawar. I requested them not to introduce me because I don't like how things traditionally go. I don't want to motivate this kind of behavior that you are only respected uh, according to how much you have achieved or from which university you have passed and that kind of thing. So what I do to motivate my students is I don't judge them by marks. एक जोक बहुत पहले सुना था कि सबसे पहले ये पूछा जाता है कि आपका प्रोफेशन क्या है ताकि ये पता हाँ, लगा सके कि आपको कितनी रिस्पेक्ट देंगे तो फिर दैट्स नॉट व्हाट आई लाइक टू इनकरेज. right. हाँ Got it. So let's तो start with the Q&A हाँ section. So या Shreyansh Ravar here was a BTech student first. So, and राइट. now he's an educator. So, to go beyond conventional life, I think it's a very ordinary thing for you. But we'd like to know what brought you into this line of educating. हाँ, it started when I was pursuing my BTech. वो 4 साल काफी सीखने को मिला. It's a 4 year course. तो एक्चुअली जो I kind of had an epiphany there कि देखने में आ रहा था कि students are as confused as teachers. कि मतलब no one had a clue or everyone is in this big cycle just running in Right. circles and no one knows, no one has a clue. किसी से पूछो कि बीटेक क्यों कर रहे हो, more than half of the students वो अच्छे से आंसर भी नहीं दे पा रहे थे and no one was job qualified and everything was such a big mess. And then I started thinking that it all starts from school. You know, schools are very important for children and it's major part of their childhood. तो तब से एक थॉट चालू हुआ. मैं और मेरे फ्रेंड्स भी स्टार्टेड टॉकिंग एंड वी मेड अ प्लान एंड हमने जो प्रोफेसर्स हैं हमारे कुछ कुछ स्कूल उनको भी लिया और कि मेजर अगर ये स्कूल वाली चीज को इम्प्रूव कर सके तो वी कैन डू सम गुड. तो जब से मैंने चालू किया है इट हैज ऑल बीन अ ग्राउंड वर्क टू डू दैट टू बी दैट कि एक अनकन्वेंशनल स्कूल खोला जाए. तो उसके लिए हाँ, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स पता भी होना चाहिए ना कि दे आर शेयरिंग एंड दे विल सपोर्ट माय विजन. तो right. दिस इंस्टीट्यूट इज ऑल अबाउट दैट कि देखते हैं एक बार छोटे में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं फिर बड़े में इम्प्लीमेंट करेंगे. सही तो सही है. definitely हाँ बिल्कुल सही है. राइट. So, did any teacher inspire you to the way you teach? How important do you think the influence of friends is? देयर वर 3 टीचर्स जिनको तो मैं दिल से शुक्रिया वाला सीन है कि एक 9th क्लास में थे जैन सर. वो जानते हैं मैं उनकी कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ. मैं जब भी अपने होम टाउन जाता हूँ मैं उनसे मिलता ही हूँ. उन्होंने मेरे को सबसे पहले सिखाया हाउ टू लव फिजिक्स एंड मैथ्स. मतलब कैसे इनसे नहीं डरना. तो उससे पहले डरते थे. ठीक है. उसके बाद अभी अब डर निकल गया है. तो ये उनकी तरफ अब से. दर्द नहीं है. तो अब अब डर नहीं है. मतलब 9th से ही डर खत्म हो गया था. आ, उनसे पढ़ने के बाद ही यूज्ड टू टीच 10 स्टूडेंट्स एट अ टाइम, नॉट मोर देन दैट. एक राउंड टेबल पे बिठा के, नो क्लासरूम, नो वैसा.
तो जैसा मैं अभी हूँ, जैसी मेरी थिंकिंग है अनकन्वेंशनल टाइप की, और ये इन 3 टीचर्स की वजह से काफी ज्यादा है। उनमें से एक जैन सर थे, बाकी 2 कॉलेज में मिले मेरे को। एक मेरे अभिनव बिश्नोई सर, वो बहुत ही चिल थे। मतलब उनको फर्क नहीं पड़ता था मार्क्स से। ही यूज्ड टू अवॉर्ड मार्क्स लाइक एनीथिंग, कि ये लो फुल मार्क्स ले लो। ठीक है, इज समथिंग रॉन्ग? एवरीथिंग्स ओके? यू गाइस कैन हियर मी? Now we can. We had some internet issues. आपका वीडियो ऑन होगा, हाँ हाँ, ठीक अच्छा। अब सब चल रहा है। हाँ, थोड़ी सी कनेक्टिविटी इश्यूज आ रहे हैं, कोई बात नहीं। अब है। चल हाँ, रहा है, अब सुनाई दे रहा है। अब चल रहा है, हाँ। ठीक है, तो कहाँ तक पहुंचे थे हम? जैन सर के बाद आपके कॉलेज में 2 टीचर्स थे। हाँ, तो एक थे विश्नोई सर, उन्होंने फिर मार्क्स की इंपॉर्टेंस सिखाई, कि मार्क्स कितने अनइम्पोर्टेंट होते हैं। ये उन्होंने इंपॉर्टेंस सिखाई। ठीक है, ही यूज्ड टू हाँ, अवॉर्ड मार्क्स फॉर फ्री, कि ये लो यार तुम मार्क्स लो, पर प्रॉमिस मी वन थिंग, कि अच्छे से पढ़ाई करो, तो मार्क्स लो। तो ओहो, दैट्स व्हाट आई इम्प्लीमेंटेड एट माय इंस्टीट्यूट। नाउ मेरे इंस्टीट्यूट में रूल है कि अगर टेस्ट पे कोई चीटिंग कर रहा है तो मैं उसको फुल मार्क्स देता हूँ। ये क्या लॉजिक तो है? एक्चुअली, हाँ, तो अब बच्चों को बुरा लगता है कि उनको फुल मार्क्स मिल रहे हैं। अब कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है ना, और अगर मैं उसको 40 में से 40 दे रहा हूँ, तो उसको बुरा लगता है कि सर डिड आई डिड समथिंग रॉन्ग, आर यू एंग्री एट मी? आपने मेरे को फुल क्यों दी? आई डोंट डिजर्व फुल। तो इससे क्या हुआ, मैंने स्टूडेंट के दिमाग से मार्क्स की वो जो हाइप है वो निकाल दी इस चीज से। नाइस, हाँ, वाओ। नाउ माय स्टूडेंट्स, उनको समझ में आया है कि मार्क्स मैटर नहीं करते, क्योंकि सर तो मार्क्स दे ही नहीं। ठीक है, फुल तो हमें मिल जाएंगे। अगर हमें हमारे पेरेंट्स को दिखाना है या दोस्तों के साथ में ब्रैग करना है, तो हम सर को बोलेंगे साइड में कि सर प्लीज इस टेस्ट में फुल दे दो, सर दे देंगे। ठीक है, पर नॉलेज चाहिए। तो नाउ दे आर आफ्टर सही, नॉलेज ओनली। हाँ, नाइस। एंड तो अ सेकेंड पार्ट लॉट, ऑफ योर क्वेश्चन वाज अबाउट फ्रेंड्स यस, ना? हाँ, फ्रेंड्स आर हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, यू गाइस ऑल्सो नो। इन्फ्लुएंस मैं केवल एक एग्जांपल से समझाऊंगा। It's like you are swimming underwater with your friends, and a bad friend is like a rock that will pull you down, and a good friend will act as a life jacket that will save your life and pull you up. राइट। That's what So friends are. in real life, we ask this question to know Yes. क्योंकि so let's take me for example, and I have friends who are one part of friends are very chilled out की रहने दो, मार्क्स से क्या होगा, एग्जाम्स नहीं करना है, लाइट लेके चलते रहते हैं। और दूसरे फ्रेंड्स which are Okay. who are very determined कि no, I have to get this amount of marks because I want a good future और करियर अच्छा होगा, ये वो बात करके। तो Right. for me to decide what kind of influence do I want, कैसे करना चाहिए, and how important it is in the future. We need balance of both. See, it's not स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये आपके दोस्तों की फॉल्ट नहीं है ना, क्योंकि दे आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी विच इज बेस्ड ऑन हाँ मार्क्स। हाँ, यूनिवर्सिटी, एजुकेशन, जॉब, सब कुछ मार्क्स से आएगा। ठीक है, व्हाट वी कैन डू इज कि सबको इनेबल कर सकते हैं। आई सेव द वन स्टोरी टू टेल यू गाइस लेटर ऑन इन द इंटरव्यू, बट आई शेयर इट विथ यू। ठीक है, इट्स अ जापानीज स्टोरी एंड इट वाज लाइफ चेंजिंग फॉर मी। ठीक है, पहले, as you know, Japan is an island, so it's related to fish. I don't know if everybody eats fish there, but just for the sake of story, let's say they eat fish only. Okay, so there was a Japanese teacher, and his student was going hungry in old days. Okay, so he thought that if I give my student fish right now, he'll sleep better. But if I teach him how to catch a fish every day, his life will be better. हम्म, Are you nice, getting me? तो हाँ, हाँ, हमें हमें जूनियर्स को सबको ये सिखाना चाहिए।
how to catch their own fish and not to just drop fish for them कि एक दिन सर्वाइव कर ले, एक साल सर्वाइव कर ले. What basically, sorry to say, but most of the school does. कि Right. केवल नाइन्थ में केवल नाइन्थ पास करना सिखा रहे हैं, ट्वेल्थ में केवल ट्वेल्थ पास करना सिखा रहे हैं. रियल लाइफ हाँ. एजुकेशन तो है ही नहीं कहीं पे ना, मतलब लॉन्ग टर्म तो कोई सिखा ही नहीं रहा है. तो यही है कि यू डू व्हाट यू नीड टू डू टू गेट बाय, पर थोड़ा थोड़ा हर जगह चेंज करेगा तो इवेंचुअली सर्कल चेंज हो जाएगा. करेक्ट, सही है, सही है. So, चलो. a lot of people from Kota have one ideology, that is to get A plus grades. What is your thought and word that you would like to give to today's youth? ओके, ये ए प्लस वाला तो ना ऑल ओवर द वर्ल्ड है. You cannot just limit to one city. ये हर जगह हाँ, है, but ये mainly सबकी India मेंटालिटी है. में हाँ, कोटा बिल्कुल है. हाँ. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, तो लेट मी गेट टू द क्वेश्चन अगेन. व्हाट वाज द क्वेश्चन? ए प्लस ग्रेड तो एंड सॉरी. अगर बहुत सारे बच्चों को खाली A plus लाना रहता है, तो द मेन थॉट इज A plus नहीं मिला तो सक्सेसफुल नहीं होंगे. और आपके एक्सपीरियंस में you've been a student and now you're an educator, तो आपको कितना इम्पोर्टेंट लगता है कि ग्रेड्स अच्छे आने चाहिए? मतलब सब लोग, मतलब यूथ के लिए, लाइक वी हैव डिस्कस्ड विद यू कि ग्रेड्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, बट हाउ डू वी एक्सप्लेन इट टू द यूथ? Right. Examples देखे of people like me and people who have accomplished far more than me. मतलब मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उनके सामने, पर उनका भी अगर एग्जाम्पल लेते हैं हम, तो वो भी यही बोलेंगे. वी हैव बीन लिसनिंग टू स्टीव जॉब्स, सर स्टीव जॉब्स, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, और वो बहुत ज्यादा हर जगह ना वो बड़ों वाला एग्जाम्पल देता है, इसलिए मैंने भी उसी से स्टार्ट किया. पर मीडियम लेवल के भी जितने भी लोगों को देखेंगे तो भी मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होते. अभी 3-4 दिन पहले हाँ. न्यूज पे एक आईएएस ऑफिसर ने डाला था दैट केमिस्ट्री में ही स्कोर 24 मार्क्स इन 12 बोर्ड्स एंड जस्ट 1 मार्क अबव द पासिंग मार्क्स. और उसके हाँ. बाद इतने ज्यादा ऑफिसर्स ने ऑल ओवर इंडिया उस ट्वीट पे डाला कि देखो हमारे 20 मार्क्स आए, हमारे 40 आए, आई गॉट फेल्ड इन 11th एग्जाम्स एंड ऑल दैट, एंड दे आर ऑल अकॉम्प्लिश्ड ऑफिसर्स लिविंग अ गुड लाइफ राइट नाउ. तो उनका एग्जाम्पल ले एंड यूज योर ओन कॉमन सेंस कि वो मैटर नहीं करते. पर दूसरी देयर इज अ फ्लिप साइड टू. अगर किसी बच्चे को, देयर इज अ पर्सन आई नो, यू गाइस आल्सो नो, माधव द ग्रेट, ठीक है, तो Yes, yes. ठीक है, आई एम सॉरी मैन, डोंट फाइंड इट ऑफेंसिव, ओके, आई नो यू वोंट, ठीक है. तो ये है कि जैसे किसी का एम्बिशन है इतना बड़ा, ठीक है, वहां तक पहुंचने के लिए, एंड ही इज गुड एट, दैट पर्सन इज गुड एट, तो why shouldn't he flaunt it? Correct. ठीक है, आई एम टेलिंग यू दैट not everyone is good at it, but if someone is good at it, why he shouldn't flaunt it? मतलब अगर वो Correct. है साइंस मैथ्स में अच्छा और वो 100% ला सकता है, तो वो लाएगा, he will make his life easy, क्योंकि अगर वो 100% लाएगा तो his next job interview will be easy and he will be able to reach his dream faster. So there's nothing Correct. wrong with it, but only for those जो ऐसा कर सकते हैं. Not everyone can do that. मैं धोनी और कोहली को चेस में बिठा दूं तो फिर वो they will no longer be heroes, वो right? क्या They are playing their करेंगे? own game. हाँ, Right. they are playing their own game and being heroes at their own game. So we should all Right. find our own game. Not कि मेरा दोस्त वो वाला गेम खेल रहा तो मैं भी वही गेम खेलूंगा. मैं भी वही Not गेम that. खेलूंगा. हाँ. हाँ. We should all Yes, find वही our own होता है games सारा. and win at it. हाँ. Right. सही है. बात वो ये, मेरे पापा ने साइंस किया था, वो इंजीनियर है, तो मैं भी इंजीनियर बनूंगा. या मेरे फ्रेंड्स सारे साइंस ले रहे हैं, वो इंजीनियर बनना चाहते तो मैं भी बन जाता, क्या फर्क पड़ता है? खुद का व्यू नहीं है, जैसे सही कोई है. बात हुआ ले रहे हैं, बस ले रहे नहीं है. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. तो ये चीज पे हमें एजुकेट करना है. हम बोलते हैं कि अर्बन यूथ आर एजुकेटेड बंच,
बट नॉट वेयर इट मैटर्स. तो हमें वहां Yeah, पे उनको exactly. एजुकेट करना है. हाँ, वहां पे करना है. सही है. Correct. तो टॉकिंग अबाउट these lines कि हम लोग सब जानते हैं कि Top let's say unfortunate. I am very good at science and maths. It's like the example you just gave. ओके. कि इतना ओके. सब कुछ करने के बाद being a top scorer और being very good at what you're doing, उसके बाद भी not getting the opportunity you deserve, how would you handle such failures? सॉरी यू गॉट इंटरप्टेड. योर वॉइस गॉट इंटरप्टेड. मैंने Okay. मैंने वहां तक सुना कि साइंस मैथ्स में यू आर गुड. उसके बाद वाला नहीं सुना. Okay, so being a top scorer, let's say Oh. after my undergraduation, I would expect a good job opportunity कि मुझे इस पे का या इस हिसाब का या यहाँ पर जॉब मिले मुझे. पर अगर मुझे नहीं मिलता है, Okay. तो how am I supposed to handle such kind of failure? Because I have given my 100%. हाँ हाँ हाँ. Okay, I get your question. I'll explain it in 2 steps. Okay. एक तो be secure with your identity. मैं ये अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल एक मतलब मैं एग्जाम्पल्स देके ही चीजें समझाता हूँ क्योंकि उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आती है. ठीक है. तो बोरिंग प्लीज मत फील. एक रेड बॉक्स है. ठीक है. मैं उसको बोल रहा हूँ कि ये येलो है. मैं सबको बोल रहा हूँ ये येलो है. मैं न्यूज मीडिया पे जाके बोल रहा हूँ ये येलो है. तो उससे वो रेड बॉक्स येलो तो नहीं हो जाएगा. वो रेड ही रहेगा. Correct. है ना. दैट्स एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कि वो रेड रहेगा. ठीक है. तो ये हम में होना चाहिए. लोग नहीं बताएंगे हम क्या है. हम डिसाइड करेंगे हम क्या है और हम वो ही रहेंगे. सही है. ठीक है. अगर इफ यू आर गुड यू नीड टू बिलीव दैट यू आर गुड. ये सब मैटर नहीं करता. ये तो बहुत ज्यादा फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि अच्छा जॉब मिला, टीचर ने कैसे मार्क्स दिए, कॉलेज में कैसे ग्रेड आया. ठीक है. ये सब तो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. उससे यू डोंट क्वेश्चन योरसेल्फ कि अरे यार आई एम अ Correct. फेलियर. नो नो नो. ठीक है. यू नीड टू बी सिक्योर अबाउट योर पर्सनैलिटी एंड टू एंड. Got it. ठीक है. यू कैन नॉट क्वेश्चन योरसेल्फ ओवर एनीथिंग. ठीक है. सेकेंड इज वी मस्ट चेंज द डेफिनेशन ऑफ फेलियर. Correct. ठीक है. एक और एग्जाम्पल. एक बोलिए. क्या बोलते कोट. एक और कोट. ठीक है. इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री हाँ. it will believe its whole life that it is stupid. It is super. है Yeah. ना. क्योंकि फिश कैन नॉट डू दैट. सिंपल सी चीज. हाँ, समझ तो गए. वो फेलियर हो गया इस केस में. इस केस में वो फेलियर हो गया. पर टेक्निकली तो वो नहीं है. पर क्योंकि दुनिया की डेफिनेशन ऐसी है वो बिलीव कर रहा है कि वो फेलियर है ना. Correct. तो दैट फिश हाँ. नीड्स टू बी विद पीपल जो उस डेफिनेशन को बिलीव करते हैं कि यार स्विम में कौन सक्सेस और कौन फेलियर. स्विमिंग में. है ना. तो हाँ. दैट्स व्हाट वी नीड टू चेंज द डेफिनेशन. डेफिनेशन इज नॉट सेम फॉर एवरीवन. ठीक है. Correct. तो यू नीड टू हाँ. मेक योर ओन सही है. डेफिनेशन. हाँ. दैट्स You can't depend on different people on your own perspective, for your own perspective. हाँ कॉमन नहीं होना चाहिए ना. दैट्स व्हाट आई हैव हाँ. अगेंस्ट करंट सिस्टम कि सबको एक कॉमन चीज पे यू आर सेइंग दैट एवरीवन इज बोर्न यूनिक एंड देन यू आर मेजरिंग अगेंस्ट कॉमन स्केल. दैट्स नॉट राइट वे. है ना. सबकी हाँ. सबकी अपनी यूनिक चीजें होनी चाहिए ना. फिर लाइक आई प्रैक्टिस दिस कि मैं ना सबको मैं स्टूडेंट का ना पहले जैसे सॉर्ट ऑफ एक फॉर्म भरवाता हूँ पेरेंट और स्टूडेंट से अलग अलग. एंड मैं सबको अलग अलग होमवर्क देता हूँ. सबको अलग अलग पढ़ाता हूँ. मतलब पूरी खिचड़ी होती है वो. डोंट टेल मी हाउ यू मैनेज दैट. ठीक है. बस वो हो जाता है. ठीक है. इट शुड बी यूनिक फॉर एवरीवन. इट शुड बी यूनिक फॉर एवरीवन. हाँ. हाँ. सही है. Got it. तो जैसे सपोज आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हो उनमें से किसी एक का मार्क्स कम आ जाता है, तो एज अ मेंटर मतलब एज अ ट्यूटर, एज अ पेरेंट्स पर्सपेक्टिव एंड एज अ किड्स पर्सपेक्टिव, आप वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो? मैं सारे स्टूडेंट्स के बारे में बताऊँ या अपने स्टूडेंट्स के बारे में ही? आपके स्टूडेंट्स के बारे में और मतलब जैसे आप
10 बच्चों को पढ़ा रहे हो, उसमें से 2 का मतलब हाँ you तो think they can really good result, ओके but ओके आई गॉट somehow इट they आई don't. गॉट इट। हाँ मेरे स्टूडेंट्स की तो टेंशन ही नहीं है, क्योंकि जैसा पहले आइसोलेट कर देता हूँ मार्क्स से। अब हाल ऐसा है, अभी थोड़े टाइम पहले एक मदर का कॉल आया तो शी सेड कि टेस्ट में बच्चा फेल हुआ है, बट ही इज क्राइंग नॉट बिकॉज ही फेल, बट वो बोल रहा है कि मेरी गलती थी, सर की नहीं थी, तो आप उनको मत कॉल करो, मेरी गलती थी, मेरे को डांट कि आप सर को मत बोलो कि क्यों मार्क्स कम आए एंड ऑल दैट, सर की कोई गलती नहीं है, सर बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। फिर जब मैं पेरेंट्स से हाँ बात करता हूँ ना, तो वापस एक और एग्जाम्पल, जैसे मेरा एक बैच है, आई टीच हाँ नॉट मोर देन 15 स्टूडेंट्स एट अ टाइम एक बैच में, ठीक है। हाँ तो वो 9 से स्टार्ट हुआ, तो 9 में उस बैच का तुम सोच नहीं सकते इतना गंदा रिजल्ट है, ठीक है। क्योंकि मैं हाँ एक नई तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो मैंने सबको क्लियर किया कि स्टे विथ मी फॉर 2 years, 10th तक हमारा एंड गोल 10th बोर्ड है, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो 10th बोर्ड है। तो 9th में सबका गंदा रिजल्ट है, बट दे बेयर्ड विथ मी, और 10th में सबका आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है, क्योंकि 9th हाँ में एक साल में आई टॉट देम हाउ टू कैच देयर ओन फिश, हाँ ठीक है। तो वो एक साल लगा, तो 10th में हमने इम्प्रूव कर लिया। तो मेरे स्टूडेंट्स और जो पेरेंट्स मेरे से कनेक्टेड हैं, उनको मार्क्स इतना मैटर नहीं करते, वो बहुत खुश हैं कि बच्चे को नॉलेज मिल गई, क्योंकि वो मेरे साथ बैठते हैं, बात करते हैं, और मैं उनको समझाता हूँ। मैं उनसे पहले ही पूछ लेता हूँ आपको मार्क्स मैटर करते हैं, नॉलेज मैटर करती है, हाँ ठीक है। क्योंकि हाँ हाँ, तो जो जिन पेरेंट्स को मार्क्स ज्यादा मैटर करते हैं, सॉरी टू से, बट वो फिर मुझे एज ए टीचर एक्सेप्ट नहीं कर पाते, देन दे लीव विद देयर किड। सही है। बट ऐसे बहुत कम लोग हैं, ऐसे बहुत कम लोग हैं, लोगों की थिंकिंग चेंज हो रही, और पीपल आर सीइंग, दे आर एक्सप्लोरिंग एंड देन दे आर सीइंग कि लॉन्ग टर्म में यही मैटर करता है, तो इट्स गुड। हम्म So what do you think the reforms should be in the system? मतलब ठीक है, हम current समझ गए education कि system. knowledge is more important than marks. But how ओके, else would you Suggest a change in the current education system. राइट। एक तो वही, टीच स्टूडेंट्स टू कैच देयर ओन फिश, ठीक है, उस पर बैठ के दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ एम आई ऑडिबल? yes हाँ yes ठीक है, उस पर बैठ के दिमाग लगाना पड़ेगा, जो स्टैंडर्ड सिलेबस है उसको चेंज करना पड़ेगा। और क्योंकि दिस लैक्स इन सिलेबस, मैं अपनी क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ, बट स्टूडेंट्स को ना इंडिपेंडेंट बनाना, like a हाँ 15-year-old kid should know a little bit about money, you know, real हम्म life में तो मनी मैटर करता है, क्योंकि जॉब उसका लग भी गया तो यू हैव टू मैनेज मनी, है ना। एंड नो वन टीचर्स दैट टू अ किड, हाउ टू मैनेज मनी इन रियल लाइफ, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, correct ठीक है, हाउ टू मैनेज मनी एंड मैनेज मेनी थिंग मोर, ठीक है, सो मच मोर, ठीक है। तो मैं ये सब चीजें सिखाता हूँ, थोड़ा रियल लाइफ एग्जाम्पल चाहिए, ठीक है, स्कूल से ही स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। वर्क कैसे करना है एक एनवायरमेंट में, ये हम लोग ना थोड़े, नो ऑफेंस टू एनीवन, बट आई थिंक सो, हम लोग ना थोड़े पैम्पर्ड किड्स हैं, हाँ ठीक सही है। है। हम समर ब्रेक्स में, है ना, है ऐसा, ये सच है, इंडिया में थोड़ा ऐसा होता है, सच है। पेरेंट्स ना हाँ थोड़ा संभाल संभाल के रखते हैं बच्चे को। बाहर देखो हाँ समर ब्रेक्स में मैकडोनल्ड्स में काम कर रहे हैं, ठीक है, पिज्जा डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे हाँ थोड़ी सी एक स्ट्रेंथ, थोड़ा सा इंडिपेंडेंस, और वो रियल लाइफ वाली चीज आ जाती है, इनसिक्योरिटीज हाँ खत्म हो जाती है कि इवन इफ आई गेट फायर्ड फ्रॉम माई जॉब, ऐसा नहीं है कि अब क्या होगा जिंदगी में एंड ऑल दैट, मतलब पता है बेसिक कहाँ से स्टार्ट करना है, तो आई कैन ऑलवेज गो बैक टू दैट एंड आई कैन Correct. सस्टेन। So what exactly do you think the most effective learning environment would be? देखा जाए तो लोगों को ये नहीं पसंद आएगा ऑब्वियसली, मेरी थिंकिंग, ठीक है। थोड़ा सा ना ऑर्गेनाइज नहीं चाहिए,
मुझे हाँ ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन ये मजा नहीं आता. थोड़ा सा थोड़ा सा मैसी, थोड़ा सा वैसा चाहिए. मतलब पूरा ऐसा नहीं चाहिए रियलिस्टिक कि होना चाहिए. हाँ कि हमने तुम्हें ऐसा बोल दिया तो तुम ऐसा करो. तो ये चीज गलत हाँ है. थोड़ा फ्रीडम होना चाहिए. बच्चे 15-16 year old kid, they're not kids anymore. मतलब उनमें दिमाग होता है भाई. उनमें काफी सही है. दिमाग होता है. हाँ. तो थोड़ा सा ना फ्रीडम चाहिए. जैसे Q&A डिस्कशंस होनी चाहिए. बैठ के डिस्कशन करो. और ये सच है हाँ कि डिस्कशन, इंटेलिजेंट डिस्कशन होता है, वो आर्ग्यूमेंट नहीं होता. और हर छोटी बात पे ऑफेंसिव नहीं फील करना होता. ठीक है. मैं अपनी हाँ वीडियो में कितना बार बोल रहा हूँ ना कि डोंट फील ऑफेंसिव, एनीवन डोंट फील ऑफेंसिव. हाँ क्योंकि हाँ बाहर जब लोगों से मिलते हैं तो एवरीवन ये बोल दिया, कैसे बोल दिया, हाँ. आपने आपने ये बोला कैसे. ऐसे अरे कैसे बोल दिया, मतलब समझते क्या हाँ मतलब क्या है एग्जैक्टली. हाँ. दैट्स व्हाट. तो तो ये तुम ये सब कैसे बोल चीजें क्या सकते हो. होती है. हाँ. हाँ. हाँ, तो ये सब चीजें ना थोड़ा, जैसे स्कूल में टीचर्स के साथ फ्रैंक डिस्कशन कितना डर लगता था. मतलब हमें तो लगता था. हाँ ठीक है. तो स्कूल में ना 2 सेशंस ऐसे होने चाहिए कि टीचर्स के साथ बस तुम डिस्कशन कर रहे हो ऑफ एनी टॉपिक यू लाइक. मतलब मैं वीकली ऐसा सेशन रखता हूँ कि आस्क एनीथिंग यू वांट. Either I'll हम्म. give an answer or I'll search for the answer and I'll provide answer tomorrow. But that's हाँ assured that you will get answer for your question. As a got- responsible, it is my responsibility as a teacher कि I'll provide you with an answer. तो ये हाँ Q&A डिस्कशन होनी चाहिए ताकि बच्चे अपना दिमाग यूज करना चालू करें. जब वो केवल बुक्स पढ़ते हैं और उसमें से रटते हैं तो उनके दिमाग की कैपेसिटी बहुत ही कम हो जाती है. उनको अपने दिमाग, अपनी क्रिएटिविटी यूज करने का तो मौका ही नहीं मिला. ठीक है. हाँ. तो ऐसे स्कूल्स हैं इंडिया में और वो बहुत कम है और दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू अ सिटी. जैसे वन हाँ. ऑफ देम इज, एक इंस्टीट्यूट है सृष्टि इन बैंगलोर, फ्रॉम वेयर माय सिस्टर ग्रेजुएटेड. ठीक है. Which दैट one? इंस्टीट्यूट Sorry. प्रमोट्स सृष्टि, सृष्टि इन बैंगलोर, सृष्टि इंस्टीट्यूट हाँ. ऑफ डिजाइन, है ना. तो दैट इंस्टीट्यूट वो प्रमोट करता है कि पार्क में जाके बैठ जाओ and do this assignment. There is no हम्म. textbooks and all that. तो ऐसे इस बेस पे एक स्कूल भी होना चाहिए. Right. So to all the And viewers, we second are thing open to is, questions right now. Sorry, just 1 minute. We are open to all oh, questions. Please keep asking. So there are two questions from Madhav Naguri and Abhilasha Naguri. So the okay, first one is, What is what the is the difference between educated and literate? literate? what is the difference between educated and literated? Is this the question? Huh. Yeah, that's it. Yeah. Well, I don't know by exact definition. If I go, literated is a person who reads literature and is educated and knows about it all. Yeah. That's right. And educated is a person जो अपनी एक फील्ड में educated है, whether he is a physicist or a psychiatrist or something like that. Got it. Literature is related to literature. uh, ये सेकंड पॉइंट था मेरा कि बुक्स बहुत ज्यादा कंपल्सरी होनी चाहिए मेरे हिसाब से स्कूल्स में. हाँ. स्कूल्स में Books जैसे बहुत ये जो ज्यादा. मोटिवेशनल बुक्स जो होती है या सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं, जो नॉन हाँ. फिक्शन बुक्स बेसिकली, दे शुड बी मेड कंपल्सरी इन स्कूल्स. Right. कि 2 वीक्स में एक बुक पढ़ो, क्योंकि वो बुक बहुत ज्यादा नॉलेज देती है. मतलब आउट ऑफ सिलेबस बुक्स जो होती है नॉन फिक्शन, वो बहुत ज्यादा नॉलेज देती है. ठीक है, समझ गए. नेक्स्ट. Anything else you would like to cover? आपको कुछ अपनी तरफ से बोलना है व्यूअर्स को? सहारा ही अपनी तरफ से बोल दिया, बहुत ज्यादा बोल दिया. नहीं, दैट्स Do इट. some, do प्लीज some. दो शब्द. प्लीज, अगर if you are in position of that power that you can implement any life changing, you can circulate this knowledge, या कुछ ऐसा implement कर सकते हैं, execute कर सकते हैं अपने इंस्टीट्यूट में, अपने स्कूल में, तो प्लीज डू दैट. बच्चों की जिंदगी सुधरेगी.
अगर किसी प्रिंसिपल तक ये Yeah. चीज पहुंचा सकते हैं तो वो करिए. किसी स्टूडेंट, if a student is feeling bad about himself or herself, उनको बताएं कि मार्क्स इम्पोर्टेंट नहीं है और ये चीज करे प्लीज. क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा टेंशन ले लेते हैं कि मार्क्स इज ऑल देयर इज एंड ऑल दैट एंड हाँ. दैट्स नॉट ट्रू. दैट्स नॉट ट्रू. There's one more question. What are your views on a skill-based education? स्किल बेस्ड एजुकेशन, प्लीज एलोबरेट इट. थोड़ा सा Well, basically, like having extra activities as a skill. Like life skills involved करना, like you said, money management. या instrument learn करना या sports में जाना, like हाँ, that. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज इम्पोर्टेंट और ऐसा करना चाहिए. जैसे अगर हमारे पास 7 या 8 सब्जेक्ट है स्कूल में, अब किसी बच्चे को नहीं है इंटरेस्ट उसको म्यूजिक में कुछ करना है, तो ये चीज होनी चाहिए कि अब नहीं है इंटरेस्ट पर उसके बोर्ड्स में तो आएगा. म्यूजिक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में चला गया पर उसके बोर्ड्स की परसेंटेज तो कोई साइंस मैथ्स वाले पे गई. ठीक है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए. तो उसको वो नहीं पढ़ना और उसको म्यूजिक पढ़ना है तो ये ऑप्शन भी होना चाहिए कि साइंस मैथ्स नहीं पढ़ना. मतलब अभी ऑप्शनल में म्यूजिक है और साइंस मैथ्स कोर में है, पर ये चीज जो 10th में एक फिल्टर है ना कि 10th के बाद आपके पास ऑप्शन है 11th में सब्जेक्ट चूज कर देगा. हाँ. ये फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम में है कि दे प्रोवाइड एन ऑप्शन इन 6th क्लास टू, कि 6th में भी आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको आगे कौन से सब्जेक्ट्स कैरी करना है. देन एवरी 2 years फिर 8th में होता है, फिर 10th में होता है. तो ये स्टार्टिंग से कर रहे हैं. मेरी एक फ्रेंड है जिसने ऐसा किया था. मतलब उसने अपने 10th में she dropped science and maths and took home science and arts. So that way She knew what she wanted to hold on it. Also, बिल्कुल. talking about the same thing, Madhav Nagori has asked, how should a parent react to a child who is interested in a field that does not exactly have a secure future? What parents do with their children, we should be happy about that child of theirs, that he has dared to do something that courageous. right, बच्चे को भी right. पता है कि लेस जॉब है और फ्यूचर इज नॉट सिक्योर, राइट. बट ही बी हैप्पी. आई थिंक दैट मैटर्स. Personally, I think it may be important, but considering the very obviously bowling, it's very courageous. But let's say if I want to get into basketball right now, I want to be a professional basketball player, तो मुझे तो नहीं पता ना कि आगे कितना स्कोप है. मेरे को बस अभी जुनून है बनने का, पर आगे जाकर जो कंपटीशन रहेगा, तो will I be prepared for that? So how should parents prepare the child or guide the child? हाँ, तो इस चीज में दैट्स वेयर काउंसलर्स कम. That's where स्टूडेंट काउंसलर्स करियर गाइड्स काउंसलर्स, वो उनको कंप्लीट नो हाउ है. उनको पूरा पता है कि फॉर एग्जाम्पल वो पेरेंट्स एंड चाइल्ड विल गो टू अ काउंसलर, तो वो पूरी बात करेंगे कि इंडिया में ही रहना है या बाहर जाना. तो इंडिया के हिसाब से कौन कौन से करियर्स वायबल हैं, बाहर अगर जा सकते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से बास्केटबॉल, इंडिया में शायद इतना स्कोप नहीं है पर बाहर काफी ज्यादा स्कोप. स्कॉलरशिप्स भी मिल जाती है. इंडिया में कम कॉलेजेस है जिनमें स्कॉलरशिप मिलती है, बाहर बहुत ज्यादा कॉलेजेस हैं जिनमें थ्रू बास्केटबॉल भी स्कॉलरशिप मिल जाती है. ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है, काउंसलर से बात करना. ठीक है, और दूसरा ये है कि काउंसलर विल गाइड यू. तो काउंसलर विल से दैट I don't know exactly what counselor will say. I am thinking that what he or she will say. हाँ, अपना जनरल व्यू बता ये रहे. मिक्स्ड, हाँ ये मिक्स्ड है कि अगर आपको बास्केटबॉल खेलना है बास्केटबॉल खेलो, ऑन द सेफ साइड आप ये भी पढ़ लो. हाँ, ठीक है, हाँ, ताकि मतलब सिचुएशन सही रहे, ऐसा ना हो जीने मरने की हालत टाइप की हो जाए. ठीक है, हम कंफर्टेबल रहे तो 2 ऑप्शन ले लो. ठीक है, either will work.
जब तक आप 100% श्योर नहीं हो तब तक के हाँ हाँ मतलब I never thought I was answering the question keeping in mind that person is 100% sure कि यही जिंदगी में हाँ करना हाँ है. I didn't think that कि हाँ 100% श्योर भी तो नहीं होते ना काफी लोग. हाँ. हाँ. तो also I had हाँ. one question कि आप कैसे teach करते हो मतलब what are your Ways of teaching. to your students and how different are they from the regular yeah, conventional methods. methods? मैं उनको ना एक्स्ट्रा चीजें बहुत ज्यादा बताता हूँ. मैं ये देख लेता हूँ जो फॉर्म होता है उसमें कि स्टूडेंट का नेचुरल इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट्स में, उन सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं उनको एक्स्ट्रा चीजें काफी ज्यादा बताता हूँ. बेसिकली आई टीच साइंस एंड मैथ्स क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उसमें है. ठीक है. तो जिनका हाँ, बहुत ज्यादा हाँ. इंटरेस्ट साइंस मैथ्स में होता है, जिनका मेजर इंटरेस्ट साइंस मैथ्स में होता है, वैसे ही बच्चे मेरे पास आते हैं. काफी ऐसे भी आते हैं हाँ, जिनका मेन इंटरेस्ट साइंस मैथ्स में नहीं है, जो केवल पास होना चाहते हैं. तो उनको मैं इतना बर्डन नहीं डालता. उन पे हम क्लास के बाद 15-20 मिनट बैठ के एक्स्ट्रा चीजों में बात करते थे. जैसे अभी एक स्टूडेंट जो केवल पास होने के लिए आया था, ठीक है, फिर उससे बातें बातें की तो पता चला ही इज वेरी गुड, ही इज एक्सीलेंट एट स्केचिंग. तो उसने यूं ही जब बात की एंड ही वाज वेरी अफ्रेड टू टेल इट टू हिज पेरेंट्स कि हाँ. नहीं, पेरेंट्स बोल रहे हैं कि कॉमर्स लो, वो नहीं लेने देंगे एंड ऑल दैट. पर उसके वो फिर जब स्केचेस देखे आयरन मैन के, स्पाइडरमैन के एंड ऑल दैट, देन आई टॉक टू हिज पेरेंट्स. उनको बुलाया, फिर बैठे. सर, कॉमर्स में बच्चा क्या ही करेगा, अभी नहीं फेल होगा, हाँ. बाद में फेल होगा, इसका जब इंटरेस्ट ही नहीं है. पर आप देखो ये स्केचिंग में दिस इज हिज ओन गेम, ही कैन एक्सेल इन दिस गेम. ठीक है. हाँ. तो अब उन्होंने अलाउ किया है उसको आर्ट्स लेने के लिए. और उसके बाद मेरा एक दोस्त है जो एनिमेटर, तो आई टॉक टू हिम बिकॉज एनिमेशन का बेसिक स्केचिंग से ही होता है. हाँ, हाँ. वन ऑफ द पार्ट इज स्केचिंग. तो अब हाँ. हमने उसके लिए प्लान किया है. अब वो स्केचिंग सीख रहे हैं. देन इन 2 years दैट गाय विल कॉन्टैक्ट हिम. अब वो एनिमेटर बनेगा तो ही इज हैप्पी. सही है. Right here. So one last question for the session ओके. is how much do you prefer online classes for kids right below 5? नॉट एट ऑल. क्यों चाहिए, क्यों चाहिए, नहीं चाहिए. नहीं, मतलब इधर लुधियाना में हो नहीं पाया पॉसिबल. पर वी वर वर्किंग ऑन एक ऐप पे वर्क कर रहे थे जो ना इनेबल करते हैं एक लोकेलिटी में होम स्कूलिंग इनेबल करते हैं. आपकी आवाज जैसे ब्रेक हो फॉर रही है. एग्जाम्पल, लेट मी सी, 1 minute. इज इट ऑडिबल नाउ? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है. हाँ, आप ऑडिबल पर आपकी वीडियो चली गई. अरे, आई एम सीइंग बोथ ऑफ यू. यू बोथ आर विजिबल. But we can't see you. आपको शायद वीडियो ऑफ हो गया है. अरे, आई कैन सी यू बोथ. You guys check your. But we can't. I can see myself too waving my hand. I can see you too. Okay, so people can see you, so I think we'll just continue right now. Maybe हाँ, you तो guys आप can continue disconnect and join करेंगे. back. That हाँ. happened to me in the beginning. Yeah. The same thing happened to me in the beginning. You guys can press the pause button and then join back. Okay, Done. we got it. We can see you. अच्छा, okay. हाँ, तो आप What बोल were रहे we थे. talking about? 8 साल के नीचे के बच्चों का हाँ, ऑनलाइन वो होम स्कूलिंग वाला. तो बेसिक आइडिया वाज दैट कि ये जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए ना होम स्कूलिंग का मेथड कुछ बनाया जाए. वी वर वर्किंग ऑन इट. 8-9 एजुकेटर्स फ्रॉम लुधियाना डिस्कस कर रहे थे हम लोग, बट वो हाँ. फीजेबल और वायबल नहीं हुआ, तो अभी के लिए वो ड्रॉप किया. आगे देखते हैं. पर या आई वांट टू प्रमोट दैट टू कि schools are not necessary, मतलब not necessary, हाँ. should not be compulsory, sorry,
they aren't necessary. हाँ They shouldn't be compulsory. yes जिनको ऑप्शन है वो होम स्कूलिंग भी कर सकते हैं एंड वील हाँ प्रोवाइड देम विद समथिंग. okay. तो ऐसा कुछ है जो बाद में करेंगे. हाँ. Great. So I think anyone interested in learning math and science from Shreyans Dhawan can contact him to learn all this, to know what it's really like to be knowledgeable and to be mentally smart. You know the difference, and I think studying under him, you will be conventionally smart also. So Okay. Devesh says he's coming to Ludhiana to to study. study A commerce student wants to study science science and under math. you. Are I'll teach commerce also. Perfect. So thank you so much, Mr. Jhaver, for being with us and Okay. giving us your time. It meant a lot to Thank us you. as a youth, as us Personally, as a youth, I think it's very enlightening also because most people just like marks नहीं आए तो तो future बस नहीं रहेगा हाँ future नहीं रहेगा तो family को दिक्कत होगी ये वो बस उसके अलावा they can't think Right. further. So I think this is very Right. important for all of us. So pleasure is all So mine. much. Thanks a lot for having me. Okay, guys. thank you. Jai Shri Jai Shri Krishna. Krishna. Jai Shri Krishna. Bye. Bye. Why are you going live? Jai Shri Krishna. Hello. भैया Am I audible to you guys? you are not audible. Now? अब audible है. Hello. नहीं you're not audible अभी भी. Wait a minute. What's going on? I'm now. Am I audible? Not really. Not really. I'm so sorry. Wait a minute. Hello. हाँ अब सही है. ये आपका फोन सीधा कर सकते हो. What? You keep your phone straight, portrait पर. Okay, okay. 1 minute. Yes. So Jai Shri Krishna. Jai Shri Hello Krishna. everybody. Thank you for joining in, and we would like Shreyans Dhawan to please give his introduction as he's the educator with Chit Chat with Represents Poet as an educator. So Mr. Shreyans Dhawan, we would love that if you give your introduction yourself. Yes, I requested you guys not to introduce me because I just want to Yes. break a chain. You know. Is everything fine? I don't know what's happening.
Wait a minute. So please give your introduction. Yeah. Okay, we'll start all over The once app, again. the app has just vanished from my screen. Just a minute. Oh, I don't know what's going on. I'm seriously not doing this. it's okay. It's our first time too. So let's just Yeah. restart again. Say Jai Shri Jai Shri Krishna. Krishna. Thank Thank you you for joining me, Mr. Shyal Chavar, as an educator and accepting our invite. We ask, welcome everybody to represent Chit Chat with an Educator who is in As a youth, as a youth, and we would have you introduce yourself. yes, Can you see me? yes, Okay, because I don't know, my camera is not working. I can't see you guys. But okay. We can see you I clearly. request you guys not to introduce me because I just want to break a chain. I don't like how people are introduced traditionally. Like कि यहाँ से बीटेक किया, then PhD किया, and he is working right now. You know, एक जोक सुना था बहुत पहले कि वी आस्क अ पर्सन कि उसकी डिग्री क्या है या उसका प्रोफेशन क्या है, ये देखने के लिए कि हाउ मच रिस्पेक्ट वी शुड गिव हिम. सो दैट्स नॉट हाउ थिंग्स शुड वर्क इन आइडियल uh, वे. दैट्स नॉट व्हाई व्हाट आई इंडोर्स. और मैं स्टूडेंट्स को भी यही बोलना चाहूंगा कि दैट्स नॉट व्हाट मैटर्स टू अस, ताकि उन पे टेंशन ना आए इस चीज की कि अरे ये करना है तभी रिस्पेक्ट मिलेगी सोसाइटी में. तो इंसान है. sweet. तो मतलब आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता दो ना कि आप करते क्या हो. सॉरी, मुझे सुनाई नहीं दिया. या टेल मी अगेन. आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता दो कि आप करते क्या हो. Like what I'm is an your educator. work that you do? I'm an educator. It's my current profession. That's what, of all the things that I like to do, I like, right now I like to do this. That's why this is me as an educator. और भी बहुत चीजें हैं. It doesn't define me as a human being. मैं बहुत ज्यादा चीजें पसंद करता हूँ. I am a human being. एंड अभी बस आई एम एन एजुकेटर. बाद में शायद आई विल बी अ राइटर और समथिंग. आई विल बी ओनर ऑफ स्कूल. राइट नाउ आई एम दिस. Nice. So we'll just start with the questions. So how Yes, did we you, should. from a BTech student, decide to teach out of nowhere? Usually the mainstream is to become an engineer or something along those lines. Yeah. Can I just take 1 minute and join you guys again? Because I am having connectivity. Yeah, sure, Just 1 minute. Okay. sure. Till then, you guys can tell something motivating to the viewers. I'm so sorry. So guys, if you guys have any questions regarding what you should be doing after your graduation or anything like that, please do drop in questions and we're free to ask him the questions that you ask. So please do not like not So say. we're gonna have a session all about beyond conventional ways of education and how Mr. Shreyans Chavar doesn't believe in any of the conventional ways of any type of thing. Like just now you heard him. I don't like how, I mean, he doesn't. That it's right to be introduced Yeah. and to have an introduction given beforehand, and that should be how the person should be respected based on their educational values or skills. So please drop in all your questions if you have any regarding education system or anything regarding those lines. Hi, I'm back. Am Hi. I audible to you guys now? Finally things are working how they're supposed to. Yes, you are now Yes. pretty much Now more let's start. than. Okay, so we'll Yes, start let's all start with again. Q&A now. And yeah. Okay, so this once more. Retake. Yeah, one more retake. Yes, greetings. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. Welcome everybody to represent Chit Chat with Youth, OM, Youth and Educator.
So we have Shreyansh Sabar today as a youngster who's also an educator. So Shreyansh Sabar, a few words for yourself. Like, we know that you do not want introduction, but a little brief once again. Acha, once again. Hi, I'm Shreyansh Chawar. I requested them not to introduce me because I don't like how things traditionally go. I don't want to motivate this kind of behavior that you are only respected uh, according to how much you have achieved or from which university you have passed and that kind of thing. So what I do to motivate my students is I don't judge them by marks. एक जोक बहुत पहले सुना था कि सबसे पहले ये पूछा जाता है कि आपका प्रोफेशन क्या है ताकि ये हाँ. पता लगा सके कि आपको कितनी रिस्पेक्ट देंगे तो फिर that's not what I like to encourage. Right. Got it. So let's So start with the Q&A section. So yeah, Shreyansh Sabar here was a BTech student first. So, and now he's an educator. So to go beyond conventional lines, I think it's a very ordinary thing for you. But we'd like to know what brought you into this line of educating. हाँ, it started when I was pursuing my BTech. वो 4 साल काफी सीखने को मिला. It's a 4 year course. तो actually जो I kind of had an epiphany there कि देखने में आ रहा था कि students are as confused as teachers. कि मतलब no one had a clue or everyone is in this big cycle just running in Right. circles and no one knows, no one has a clue. किसी से पूछो कि बीटेक क्यों कर रहे हो, more than half of the students वो अच्छे से आंसर भी नहीं दे पा रहे थे and no one was job qualified and everything was such a big mess. And then I started thinking that it all starts from school. You know, schools are very important for children and it's major part of their childhood. तो तब से एक थॉट चालू हुआ. मैं और मेरे फ्रेंड्स वी स्टार्टेड टॉकिंग एंड वी मेड अ प्लान एंड हमने जो प्रोफेसर्स हैं हमारे कुछ कुछ स्कूल उनको भी लिया और कि मेजर अगर ये स्कूल वाली चीज को इम्प्रूव कर सके तो वी कैन डू सम गुड. तो जब से मैंने चालू किया है इट हैज ऑल बीन अ ग्राउंड वर्क टू डू दैट टू बी दैट कि एक अनकन्वेंशनल स्कूल खोला जाए. तो उसके लिए हाँ. स्टूडेंट्स और पेरेंट्स पता भी होना चाहिए ना कि दे आर शेयरिंग एंड दे विल सपोर्ट माय विजन. तो Right. दिस इंस्टीट्यूट इज ऑल अबाउट दैट कि देखते हैं एक बार छोटे में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं फिर बड़े में इम्प्लीमेंट करेंगे. सही तब तक सही है. reputation भी मिलनी चाहिए. राइट. So, did any teacher inspire you to the way you teach? How important do you think the influence of friends is? देयर वर 3 टीचर्स जिनको तो मैं दिल से शुक्रिया वाला सीन है कि एक 9th क्लास में थे जैन सर. वो जानते हैं मैं उनकी कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ. मैं जब भी अपने होम टाउन जाता हूँ मैं उनसे मिलता ही. उन्होंने मेरे को सबसे पहले सिखाया हाउ टू लव फिजिक्स एंड मैथ्स. मतलब कैसे इनसे नहीं डरना. तो उससे पहले डरते थे. ठीक है. उसके बाद अभी अब डर निकल गया. तो ये उनकी तरफ अब से. डर नहीं है. तो अब डर नहीं है. मतलब 9th से ही डर खत्म हो गया था. उनसे पढ़ने के बाद ही यूज्ड टू टीच 10 स्टूडेंट्स एट अ टाइम, नॉट मोर देन दैट. एक राउंड टेबल पे बिठा के, नो क्लासरूम, नो वैसा. तो जैसा मैं अभी हूँ, जैसी मेरी थिंकिंग है अनकन्वेंशनल टाइप की, और ये इन 3 टीचर्स की वजह से काफी ज्यादा है. उनमें से एक जैन सर थे. बाकी 2 कॉलेज में मिले मेरे को. एक मेरे अभिनव बिश्नोई सर, वो बहुत ही चिल थे. मतलब उनको फर्क नहीं पड़ता था मार्क्स से. ही यूज्ड टू अवॉर्ड मार्क्स लाइक एनीथिंग कि ये लो फुल मार्क्स ले लो. ठीक है. Is something wrong? Everything's okay? You guys can hear me? Now we can. We had some internet issues. आपका वीडियो होगा. हाँ. हाँ. अच्छा. अब सब चल रहा है. हाँ, थोड़ी सी कनेक्टिविटी इश्यूज आ रहे हैं. कोई बात नहीं. अब हाँ. चल रहा है. अब सुनाई दे रहा है.
अब चल रहा है हाँ। ठीक है, तो कहाँ तक पहुंचे थे हम? जैन सर के बाद आपके कॉलेज में 2 टीचर्स थे। हाँ, तो एक थे विश्नोई सर, उन्होंने फिर मार्क्स की इंपॉर्टेंस सिखाई कि मार्क्स कितने अनइम्पोर्टेंट होते हैं, ये उन्होंने इंपॉर्टेंस सिखाई। ठीक है, ही यूज्ड टू हाँ अवॉर्ड मार्क्स फॉर फ्री कि ये लो यार तुम मार्क्स दो, पर प्रॉमिस मी वन थिंग कि अच्छे से पढ़ाई करो, तो मार्क्स दो। तो दैट्स व्हाट आई इम्प्लीमेंटेड इन माय इंस्टीट्यूट। नाउ मेरे इंस्टीट्यूट में रूल है कि अगर टेस्ट पे कोई चीटिंग कर रहा है तो मैं उसको फुल मार्क्स देता हूँ। ये क्या लॉजिक तो है? एक्चुअली हाँ, तो अब बच्चों को बुरा लगता है कि उनको फुल मार्क्स मिल रहे हैं। अब कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है ना, और अगर मैं उसको 40 में से 40 दे रहा हूँ तो उसको बुरा लगता है कि सर डिड आई डिड समथिंग रॉन्ग, आर यू एंग्री एट मी, आपने मेरे को फुल क्यों दी, आई डोंट डिजर्व फुल। तो इससे क्या हुआ, मैंने स्टूडेंट के दिमाग से मार्क्स की वो जो हाइप है वो निकाल दी इस चीज से। नाइस। हाँ, वाओ। नाउ माय स्टूडेंट्स, उनको समझ में आया है कि मार्क्स मैटर नहीं करते, क्योंकि सर तो मार्क्स दे ही नहीं। ठीक है, फुल तो हमें मिल जाएंगे, अगर हमें हमारे पेरेंट्स को दिखाना है या दोस्तों के सामने ब्रैग करना है तो हम सर को बोलेंगे साइड में कि सर प्लीज इस टेस्ट में फुल दे दो, सर दे देंगे। ठीक है, नॉलेज चाहिए, तो नाउ दे आर आफ्टर सही है। नॉलेज ओनली। हाँ, नाइस। एंड So a सेकंड पार्ट ऑफ lot. योर क्वेश्चन वाज अबाउट फ्रेंड्स Yes. ना। हाँ, फ्रेंड्स आर हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, यू गाइस ऑल्सो नो। इन्फ्लुएंस मैं केवल एक एग्जांपल से समझाऊंगा। It's like you are swimming underwater with your friends, and a bad friend is like a rock that will pull you down, and a good friend will act as a life jacket that will save your life and pull you up. right. That's what So friends are. in real life, we ask this question to know Yes. क्योंकि so let's take me for example, and I have friends who are one part of friends are very chilled out कि रहने दो मार्क्स से क्या होगा, एग्जाम्स नहीं करना है, लाइट लेके चलते रहते हैं, और दूसरे फ्रेंड्स which are who Okay. are very determined कि no I have to get this amount of marks because I want a good future और करियर अच्छा होगा ये वो बात करके। तो Right. for me to decide what kind of influence do I want, कैसे करना चाहिए and how important it is in the future. We need balance of both. See, it's not स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये आपके दोस्तों की फॉल्ट नहीं है ना, क्योंकि दे आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी विच इज बेस्ड ऑन हाँ मार्क्स, हाँ यूनिवर्सिटी, एजुकेशन, जॉब, सब कुछ मार्क्स से आएगा। ठीक है, व्हाट वी कैन डू इज कि सबको इनेबल कर सकते हैं। आई सेव द वन स्टोरी टू टेल यू गाइस later on in the interview, but I'll share it with you now. ठीक है, it's a Japanese story and it was life changing for me. ठीक है, पहले, as you know, Japan is an island, so it's related to fish. I don't know if everybody eats fish there, but just for the sake of story, let's say they eat fish only. Okay, so there was a Japanese teacher, and his student was going hungry in old days. Okay, so he thought that if I give my student fish right now, he'll sleep better. But if I teach him how to catch a fish every day, his life will be better. mm-hmm. Are you Nice. getting me? तो Yes. हाँ, हमें जूनियर्स को सबको ये सिखाना चाहिए how to catch their own fish and not to just drop fish for them कि एक दिन सर्वाइव कर ले, एक साल सर्वाइव कर ले। What basically, sorry to say, but most of the school does. कि Right. केवल नाइन्थ में केवल नाइन्थ पास करना सिखा रहे हैं, ट्वेल्थ में केवल ट्वेल्थ पास करना सिखा रहे हैं। रियल लाइफ हाँ एजुकेशन तो है ही नहीं कहीं पे ना, मतलब लॉन्ग टर्म तो कोई सिखा ही नहीं रहा। तो यही है कि यू डू व्हाट यू नीड टू डू टू गेट बाय, पर थोड़ा थोड़ा हर जगह चेंज करेगा तो इवेंचुअली सर्कल चेंज हो जाएगा। Correct. सही है। हम्म, So चलो a lot of next। people from Kota have one ideology, that is to get A plus grades. What is your thought and word that you would like to give to today's youth? ओके,
ये A+ वाला तो ना ऑल ओवर द वर्ल्ड है. You cannot just limit to one city. ये हर जगह हाँ, है, but ये maybe सबकी India में मेंटालिटी है. India में हाँ छोटा बिल्कुल है. बिल्कुल हाँ. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ तो let me get to the question again. What was the question? A+ grade तो and sorry. अगर बहुत सारे बच्चों को खाली A+ लाना रहता है, तो द मेन थॉट इज A+ नहीं मिला तो सक्सेसफुल नहीं होंगे. और आपके एक्सपीरियंस में you've been a student and now you're an educator, तो आपको कितना इम्पोर्टेंट लगता है कि ग्रेड्स अच्छे आने चाहिए? मतलब सब लोग मतलब यूथ के लिए, लाइक वी हैव डिस्कस्ड विद यू कि ग्रेड्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, बट हाउ डू वी एक्सप्लेन इट टू द यूथ? Right. Examples देखे of people like me and people who have accomplished far more than me. मतलब मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उनके सामने. पर उनका भी अगर एग्जाम्पल लेते हैं हम, तो वो भी यही बोलेंगे. वी हैव बीन लिसनिंग टू स्टीव जॉब्स, सर स्टीव जॉब्स, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग. और वो बहुत ज्यादा हर जगह में वो बड़ों वाला ही एग्जाम्पल देता है, इसलिए मैंने भी उसी से स्टार्ट किया. पर मीडियम लेवल के भी जितने भी लोगों को देखेंगे तो भी मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होते. अभी 3-4 दिन पहले हाँ. न्यूज पे एक IAS ऑफिसर ने डाला था दैट केमिस्ट्री में ही स्कोर 24 मार्क्स इन 12 बोर्ड्स एंड जस्ट 1 मार्क अबव द पासिंग मार्क्स. और उसके हाँ. बाद इतने ज्यादा ऑफिसर्स ने ऑल ओवर इंडिया उस ट्वीट पे डाला कि देखो हमारे 20 मार्क्स आए, हमारे 40 आए, आई गॉट फेल्ड इन 11th एग्जाम्स एंड ऑल दैट. एंड दे आर ऑल अकॉम्प्लिश्ड ऑफिसर्स लिविंग अ गुड लाइफ राइट नाउ. तो Right. उनका एग्जाम्पल ले एंड यूज योर ओन कॉमन सेंस कि वो मैटर नहीं करते. पर दूसरी देयर इज अ फ्लिप साइड टू. अगर किसी बच्चे को, देयर इज अ पर्सन, आई नो यू गाइस आल्सो नो माधव द ग्रेट, ठीक है, तो am I audible? Yes, yes. ठीक है. आई एम सॉरी मैन, डोंट फाइंड इट ऑफेंसिव. ओके, आई नो यू वोंट, आई नो यू वोंट, ठीक है. तो ये है कि जैसे किसी का एम्बिशन है इतना बड़ा, ठीक है, वहां तक पहुंचने के लिए, एंड ही इज गुड एट, दैट पर्सन इज गुड Yeah. एट, तो व्हाई शुडंट ही फ्लॉन्ट इट? Correct. ठीक है. आई एम टेलिंग यू दैट not everyone is good at it, but if someone is good at it, why he shouldn't flaunt it? मतलब अगर वो Correct. है साइंस मैथ्स में अच्छा और वो 100% ला सकता है, तो वो लाएगा. ही विल मेक हिज लाइफ इजी, क्योंकि अगर वो 100% लाएगा तो हिज नेक्स्ट जॉब इंटरव्यू विल बी इजी एंड ही विल बी एबल टू रीच हिज ड्रीम फास्टर. तो देयर इज नथिंग Correct. रॉन्ग विद इट, बट ओनली फॉर दोज जो ऐसा कर सकते हैं. नॉट एवरीवन कैन डू दैट. मैं धोनी और कोहली को चेस में बिठा दूं तो फिर वो they will no longer be heroes, वो right? क्या They are playing their करेंगे? own game. हाँ, Right. they are playing their own game and being heroes at their own game. So we should all Right. find our own game. Not कि मेरा दोस्त वो वाला गेम खेल रहा तो मैं भी वही गेम खेलूंगा. मैं भी वही Not गेम that. खेलूंगा. हाँ. हाँ. We should all Yes. find वही our own होता है games सारा and win at it. हाँ. Right. सही है. बात वही है, मेरे पापा ने साइंस किया था, वो इंजीनियर है, तो मैं भी इंजीनियर बनूंगा. या मेरे फ्रेंड्स सारे साइंस ले रहे, वो इंजीनियर बनना चाहते तो मैं भी बन जाता. क्या फर्क पड़ता है? खुद का व्यू नहीं है. जैसे सही. वही बात हुआ, ले रहे हैं बस, ले रहे नहीं है. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. तो ये चीज पे हमें एजुकेट करना है. हम बोलते हैं कि अर्बन यूथ आर एजुकेटेड बंच, बट नॉट वेयर इट मैटर्स. तो हमें वहां Yeah, पे उनको exactly. एजुकेट करना है. हाँ, वहां पे. सही है. Correct. तो टॉकिंग अबाउट these lines कि हम लोग सब जानते हैं कि Top let's say watching. I am very good at science and maths. It's like the example you just gave. Okay. कि इतना सब कुछ करने के बाद being a top scorer or being very good at what you're doing, उसके बाद भी not getting the opportunity you deserve, how would you handle such failures? Sorry, you got interrupted. Your voice got interrupted. मैंने Okay. मैंने वहां तक सुना कि साइंस मैथ्स में यू आर गुड, उसके बाद वाला नहीं सुना. Okay, so being a top scorer, let's say Right. after my undergraduation, I would expect a good job opportunity.
कि मुझे इस पे का या इस हिसाब का या यहाँ पर जॉब मिले मुझे, पर अगर मुझे नहीं मिलता है ओके तो हाउ एम आई सपोज टू हैंडल सच काइंड ऑफ फेलियर बिकॉज आई हैव गिवन माई 100%. हाँ 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 ओके आई गेट योर क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन इट इन 2 स्टेप्स ओके एक तो बी सिक्योर विथ योर आइडेंटिटी मैं ये अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ फॉर एग्जाम्पल मतलब मैं एग्जाम्पल्स देके ही चीजें समझाता हूँ क्योंकि उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आती है ठीक है तो बोरिंग प्लीज मत फील करो एक रेड बॉक्स है ठीक है मैं उसको बोल रहा हूँ कि ये येलो है मैं सबको बोल रहा हूँ ये येलो है मैं न्यूज मीडिया पे जाके बोल रहा हूँ ये येलो है तो उससे वो रेड बॉक्स येलो तो नहीं हो जाएगा वो रेड ही रहेगा है ना दैट्स एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कि वो रेड रहेगा ठीक है तो ये हमें होना चाहिए लोग नहीं बताएंगे हम क्या है हम डिसाइड करेंगे हम क्या है और हम वो ही रहेंगे सही है. ठीक है अगर इफ यू आर गुड यू नीड टू बिलीव दैट यू आर गुड ये सब मैटर नहीं करता ये तो बहुत ज्यादा फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि अच्छा जॉब मिला टीचर ने कैसे मार्क्स दिए कॉलेज में कैसा ग्रेड आया ठीक है ये सब तो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उससे यू डोंट क्वेश्चन योरसेल्फ कि अरे यार आई एम अ Correct. फेलियर नो 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 ठीक है यू नीड टू बी सिक्योर अबाउट योर पर्सनैलिटी एंड टू एंड Got it. ठीक है यू कैन नॉट क्वेश्चन योरसेल्फ ओवर एनीथिंग ठीक है सेकंड इज वी मस्ट चेंज द डेफिनेशन ऑफ फेलियर Correct. ठीक है एक और एग्जांपल एक बोलिए. क्या बोलते हैं कोट एक और कोट ठीक है इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री हाँ. it will believe its whole life that it is stupid It is super. सही. है Yeah. ना क्योंकि फिश कैन नॉट डू दैट सिंपल सी चीज हाँ समझ तो गए. वो फेलियर हो गया इस केस में वो फेलियर हो गया पर टेक्निकली तो वो नहीं पर क्योंकि दुनिया की डेफिनेशन ऐसी है वो बिलीव कर रहा है कि वो फेलियर है ना Correct. तो दैट फिश हाँ. नीड्स टू बी विद पीपल जो उस डेफिनेशन को बिलीव करते हैं कि यार स्विम में कौन सक्सेस और कौन फेलियर स्विमिंग में है ना तो हाँ. दैट्स व्हाट वी नीड टू चेंज द डेफिनेशन इज नॉट सेम फॉर एवरीवन ठीक है Correct. तो यू नीड टू हाँ. मेक योर ओन सही है. डेफिनेशन हाँ दैट्स You can't depend on different people on your own perspective for your own perspective. हाँ कॉमन नहीं होना चाहिए ना दैट्स व्हाट आई हैव हाँ. अगेंस्ट करंट सिस्टम कि सबको एक कॉमन चीज पे यू आर सेइंग दैट एवरीवन इज बोर्न यूनिक एंड देन यू आर मेजरिंग अगेंस्ट कॉमन स्केल दैट्स नॉट राइट वे है ना सबकी हाँ. सबकी अपनी यूनिक चीजें होनी चाहिए ना फिर लाइक आई प्रैक्टिस दिस कि मैं ना सबको मैं स्टूडेंट का ना पहले जैसे सॉर्ट ऑफ एक फॉर्म भरवाता हूँ पेरेंट्स और स्टूडेंट से अलग अलग एंड मैं सबको अलग अलग होमवर्क देता हूँ सबको अलग अलग पढ़ाता हूँ मतलब पूरी खिचड़ी होती है वो डोंट टेल मी हाउ यू मैनेज दैट ठीक है बस वो हो जाता है ठीक है इट शुड बी यूनिक फॉर एवरीवन इट शुड बी यूनिक फॉर एवरीवन हाँ. हाँ सही है. Got it. तो जैसे सपोज आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हो उनमें से किसी एक का मार्क्स कम आ जाता है तो एज अ मेंटोर मतलब एज अ ट्यूटर एज अ पेरेंट्स पर्सपेक्टिव एंड एज अ किड्स पर्सपेक्टिव आप वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो? मैं सारे स्टूडेंट्स के बारे में बताऊँ या अपने स्टूडेंट्स के बारे में आपके स्टूडेंट्स नहीं के बारे में. तो और मतलब जैसे आप 10 बच्चों को पढ़ा रहे हो उसमें से 2 का मतलब हाँ you तो guys take a really good result ओके but ओके आई गॉट somehow इट they आई don't. गॉट इट हाँ मेरे स्टूडेंट्स की तो टेंशन ही नहीं है ये क्योंकि जैसा मैं पहले आइसोलेट कर देता हूँ मार्क्स से अब हाल ऐसा है अभी थोड़े टाइम पहले एक मदर का कॉल आया तो शी सेड कि टेस्ट में बच्चा फेल हुआ है बट ही इज ट्राइंग नॉट बिकॉज ही फेल बट वो बोल रहा है कि मेरी गलती थी सर की नहीं थी तो आप उनको मत कॉल करो मेरी गलती थी मेरे को डांट कि आप सर को मत बोलो कि क्यों मार्क्स कम आए एंड ऑल दैट सर की कोई गलती नहीं है सर बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं फिर जब मैं हाँ. पेरेंट्स से बात करता हूँ ना तो वापस एक और एग्जांपल जैसे मेरा एक बैच है
आई टीच हाँ नॉट मोर देन 15 स्टूडेंट्स एट अ टाइम, एक बैच में. हाँ ठीक है, तो वो 9 से स्टार्ट हुआ. तो 9 में उस बैच का तुम सोच नहीं सकते इतना गंदा रिजल्ट है. ठीक है, क्योंकि मैं हाँ एक नई तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो मैंने सबको क्लियर किया कि स्टे विथ मी फॉर 2 years. 10th तक हमारा एंड गोल 10th बोर्ड है. ठीक है, अगर आपको चाहिए तो 10th बोर्ड है. तो 9th में सबका गंदा रिजल्ट है, बट दे बेयर्ड विथ मी. और 10th में सबका आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है, क्योंकि 9th हाँ में एक साल में आई टॉट देम हाउ टू कैच देयर ओन फिश. हाँ ठीक है, तो वो एक साल लगा. तो 10th में हमने इम्प्रूव कर दिया. तो मेरे स्टूडेंट्स और जो पेरेंट्स मेरे से कनेक्टेड हैं, उनको मार्क्स इतना मैटर नहीं करते. वो बहुत खुश हैं कि बच्चे को नॉलेज मिल गई, क्योंकि वो मेरे साथ बैठते हैं, बात करते हैं, और मैं उनको समझाता हूँ. मैं उनसे पहले ही पूछ लेता हूँ, आपको मार्क्स मैटर करते हैं, नॉलेज मैटर करती है. हाँ ठीक है, क्योंकि हाँ हाँ, तो जो जिन पेरेंट्स को मार्क्स ज्यादा मैटर करते हैं, सॉरी टू से, बट वो फिर मुझे एज ए टीचर एक्सेप्ट नहीं कर पाते. देन दे लीव विद देयर किड. सही है. बट ऐसे बहुत कम लोग हैं, ऐसे बहुत कम लोग हैं. लोगों की थिंकिंग चेंज होगी, और पीपल आर सीइंग, दे आर एक्सप्लोरिंग, एंड देन दे आर सीइंग कि लॉन्ग टर्म में यही मैटर करता है. तो इट्स गुड. हम्म. So what do you think the reforms should be in the system? मतलब ठीक है, हम Current समझ गए education system. knowledge is more important than marks. But how Okay. else would you Suggest a change in the current education system. राइट. एक तो वही, टीच स्टूडेंट्स टू कैच देयर ओन फिश. ठीक है, उस पर बैठ के दिमाग लगाना पड़ेगा. हाँ. एम आई ऑडिबल? Yes, हाँ yes. ठीक है, उस पर बैठ के दिमाग लगाना पड़ेगा. जो स्टैंडर्ड सिलेबस है उसको चेंज करना पड़ेगा. और क्योंकि दिस लैक्स इन सिलेबस, मैं अपनी क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ, बट स्टूडेंट्स को ना इंडिपेंडेंट बनाना. Like हाँ. a 15-year-old kid should know a little bit about money. Real life में तो मनी मैटर करता है, क्योंकि जॉब उसका लग भी गया तो you have to manage money, है ना? And no one teaches that to a kid, how to manage money in real life. Just for an example. Correct. ठीक है, how to manage money and manage many things more. ठीक है, so much more. ठीक है, तो मैं ये सब चीजें सिखाता हूँ. थोड़ा रियल लाइफ एग्जाम्पल चाहिए. ठीक है, स्कूल से ही स्टार्ट हो जाना चाहिए. ठीक है, वर्क कैसे करना है एक एनवायरमेंट में, ये हम लोग ना थोड़े, नो ऑफेंस टू एनीवन, बट आई थिंक सो, हम लोग ना थोड़े पैम्पर्ड किड्स हैं. हाँ. ठीक सही है, है. हम समर ब्रेक्स में, है ना, है ऐसा, ये सच है. इंडिया में थोड़ा ऐसा होता है. सच है. पेरेंट्स ना हाँ. थोड़ा संभाल संभाल के रखते हैं बच्चे को. बाहर देखो हाँ. समर ब्रेक्स में मैकडोनल्ड्स में काम कर रहे हैं. ठीक है, पिज्जा डिलीवर कर रहे हैं. ठीक है, तो उससे हाँ. थोड़ी सी एक स्ट्रेंथ, थोड़ा सा इंडिपेंडेंस, और वो रियल लाइफ वाली चीज आ जाती है. इनसिक्योरिटीज हाँ. खत्म हो जाती है कि इवन इफ आई गेट फायर्ड फ्रॉम माई जॉब, ऐसा नहीं है कि अब क्या होगा जिंदगी में और ऑल दैट. मतलब पता है बेसिक कहाँ से स्टार्ट करना है, तो आई कैन ऑलवेज गो बैक टू दैट एंड आई कैन Correct. सस्टेन. So what exactly do you think the most effective learning environment would be? देखा जाए तो लोगों को ये नहीं पसंद आएगा ऑब्वियसली, मेरी थिंकिंग. ठीक है, थोड़ा सा ना ऑर्गेनाइज नहीं चाहिए मुझे. ऑर्गेनाइजेशन, डिसिप्लिन, ये मजा नहीं आता. थोड़ा सा मैसी, थोड़ा सा वैसा चाहिए. मतलब पूरा ऐसा नहीं चाहिए रियलिस्टिक होना कि चाहिए. हाँ, कि हमने तुम्हें ऐसा बोल दिया तो तुम ऐसा करो. तो ये चीज गलत हाँ. है. थोड़ा फ्रीडम होना चाहिए. बच्चे 15-16 year old kid, they're not kids anymore. मतलब उनमें दिमाग होता है भाई. उनमें सही काफी है. दिमाग होता है. हाँ, तो थोड़ा सा ना फ्रीडम चाहिए. जैसे Q&As, डिस्कशंस होनी चाहिए. बैठ के डिस्कशन करो, और ये सिखाओ हाँ. कि डिस्कशन इंटेलिजेंट डिस्कशन होता है, वो आर्ग्यूमेंट नहीं होता, और हर छोटी बात पे ऑफेंसिव नहीं फील करना होता.
ठीक है, मैं हाँ भी वीडियो में कितना बार बोल रहा हूँ ना कि डोंट फील ऑफेंसिव, एनीवन डोंट फील ऑफेंसिव, हाँ क्योंकि हाँ बाहर जब लोगों से मिलते हैं तो एवरीवन ये बोल दिया, कैसे बोल दिया, हाँ आपने ये बोला कैसे, ऐसे अरे कैसे बोल दिया, मतलब समझते क्या हाँ बन जाए क्या है एग्जैक्टली। हाँ, दैट्स व्हाट तो तो ये तुम ये सब कैसे बोल चीजें सकते करना हो? है। हाँ हाँ, तो ये सब चीजें ना थोड़ा, जैसे स्कूल में टीचर्स के साथ फ्रैंक डिस्कशन कितना डर लगता था, मतलब हमें तो लगता था, हाँ ठीक है, तो स्कूल में ना 2 सेशंस ऐसे होने चाहिए कि टीचर्स के साथ बस तुम डिस्कशन कर रहे हो ऑफ एनी टॉपिक यू लाइक, मतलब मैं वीकली ऐसा सेशन रखता हूँ कि आस्क एनीथिंग यू वांट, either हम्म I'll give an answer or I'll search for the answer and I'll provide answer tomorrow, but that's हाँ assured that you will get answer for your question as a go responsible. It is my responsibility as a teacher that I'll provide you with an answer. तो ये हाँ Q&A डिस्कशन होनी चाहिए ताकि बच्चे अपना दिमाग यूज करना चालू करें। जब वो केवल बुक्स पढ़ते हैं और उसमें से रटते हैं तो उनके दिमाग की कैपेसिटी बहुत ही कम हो जाती है, उनको अपने दिमाग अपनी क्रिएटिविटी यूज करने का तो मौका ही नहीं मिला, ठीक है। हम्म हाँ तो ऐसे स्कूल्स हैं इंडिया में पर वो बहुत कम है और दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू अ सिटी, जैसे वन हाँ ऑफ देम इज एक इंस्टीट्यूट है सृष्टि इन बैंगलोर फ्रॉम वेयर माय सिस्टर ग्रेजुएटेड, ठीक है, which दैट one इंस्टीट्यूट sorry प्रमोट्स सृष्टि, सृष्टि इन बैंगलोर, सृष्टि इंस्टीट्यूट हाँ ऑफ डिजाइन, है ना, तो दैट इंस्टीट्यूट वो प्रमोट करता है कि पार्क में जाके बैठ जाओ and do this assignment. There is no हम्म textbooks and all that. तो ऐसे इस बेस पे एक स्कूल भी होना चाहिए। right So to all the And viewers, we second are thing open to is, questions right now. Sorry, just 1 minute. We are open to all okay, questions. Please keep asking. so there are two questions from Madhav Naguri and Abhilasha Naguri. So the okay. first one is What what is is the the difference between educated and literate? literate? What is the difference between educated and literated? Is this the question? Huh. Yeah, that's it. Yeah. Well, I don't know by exact definition if I go. Literated is a person who reads literature and is educated and knows about it all. Yeah, That's right. And educated is a person जो अपनी एक फील्ड में एजुकेटेड है, whether he is a physicist or a psychiatrist or something like that. got it. Literature is related to literature. uh, ये सेकंड पॉइंट था मेरा कि बुक्स बहुत ज्यादा कंपल्सरी होनी चाहिए मेरे हिसाब से स्कूल्स में। हाँ स्कूल्स में बुक्स जैसे बहुत ये जो ज्यादा मोटिवेशनल बुक्स जो होती है या सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं, जो नॉन हाँ फिक्शन बुक्स बेसिकली, दे शुड बी मेड कंपल्सरी इन स्कूल्स right कि 2 वीक्स में एक बुक पढ़ो, क्योंकि वो बुक बहुत ज्यादा नॉलेज देती है, मतलब आउट ऑफ सिलेबस बुक्स जो होती है नॉन फिक्शन, वो बहुत ज्यादा नॉलेज देती ठीक है समझ गए। है। नेक्स्ट, Anything else you would like to cover? आपको कुछ अपनी तरफ से बोलना है व्यूअर्स को? सारा ही अपनी तरफ से बोल दिया, बहुत ज्यादा बोल दिया। नहीं, दैट्स दो इट, शब्द प्लीज दो शब्द प्लीज, अगर if you are in position of that power that you can implement any life changing, you can circulate this knowledge या कुछ ऐसा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने इंस्टीट्यूट में, अपने स्कूल में, तो प्लीज डू दैट, बच्चों की जिंदगी सुधरेगी। अगर किसी प्रिंसिपल तक ये या चीज पहुंचा सकते हैं तो वो करिए। किसी स्टूडेंट, इफ अ स्टूडेंट इज फीलिंग बैड अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, उनको बताएं कि मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये चीज करें प्लीज, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा टेंशन ले लेते हैं कि मार्क्स इज ऑल देयर इज एंड ऑल दैट, and हाँ हाँ that's not true, that's not true। So, there's one more question. What are your views on a skill-based education? skill based education, please elaborate it, थोड़ा सा explain। मतलब basically like having extra activities as a skill. Like life skills involve करना.
like you said, या money management, या and इंस्ट्रूमेंट लर्न करना या राइट। स्पोर्ट्स में जाना लाइक हाँ, दैट. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इम्पोर्टेंट। और ऐसा करना चाहिए। जैसे अगर हमारे पास 7 या 8 सब्जेक्ट है स्कूल में, अब किसी बच्चे को नहीं है इंटरेस्ट उसको म्यूजिक में कुछ करना है, तो ये चीज होनी चाहिए कि अब नहीं है इंटरेस्ट पर उसके बोर्ड्स में तो आएगा, म्यूजिक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में चला गया, और उसके हाँ। बोर्ड्स की परसेंटेज तो कोई साइंस मैथ्स वाले पे गई, ठीक है। और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसको वो नहीं पढ़ना और उसको म्यूजिक पढ़ना है, तो ये ऑप्शन भी होना चाहिए कि साइंस मैथ्स नहीं पढ़ना। मतलब अभी ऑप्शनल में म्यूजिक है और साइंस मैथ्स कोर में है, पर ये चीज जो 10th में एक फिल्टर है ना कि 10th के बाद आपके पास ऑप्शन है 11th में सब्जेक्ट चूज करने का, हाँ. तो ये फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम में है कि दे प्रोवाइड एन ऑप्शन इन 6th क्लास टू, कि 6th में भी आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको आगे कौन से सब्जेक्ट्स कैरी करने, देन एवरी 2 years, फिर 8th में होता है, फिर 10th में होता है। तो ये हाँ. स्टार्टिंग से कर देना मेरी चाहिए। एक फ्रेंड है जिसने ऐसा किया था. मतलब उसने अपने 10th में she dropped science and maths and took home science and arts. So that way she was she knew what she wanted, had a हाँ. hold on it. Also, बिल्कुल talking about the same thing, Madhav Nagori has asked, What how should a parent react to a child who is interested in a field that does not exactly have a secure future? future? What should parents do if their children they should be happy about that child of theirs, that he has dared to do something that courageous, कि Right, बच्चे को भी right. पता है कि लेस जॉब है और फ्यूचर इज नॉट सिक्योर, राइट, बट ही विल बी हैप्पी, आई थिंक दैट मैटर्स। And, Personally, I think it may be important, but considering the very obviously Bolik, it's very courageous. But let's say if I want to get into basketball right now and to be a professional basketball player, तो मुझे तो नहीं पता ना कि आगे कितना स्कोप है. मेरे को बस अभी जुनून है बनने का, पर आगे जाकर जो कंपटीशन रहेगा, तो will I be हाँ, prepared for that? So how should parents Support, prepare the yeah. child or guide the child? हाँ, तो इस चीज में दैट्स वेयर काउंसलर्स कम, That's where स्टूडेंट काउंसलर्स करियर गाइड्स, काउंसलर्स, वो हाँ. वो उनको कंप्लीट नो हाउ है, उनको पूरा पता है कि फॉर एग्जाम्पल वो पेरेंट्स एंड चाइल्ड विल गो टू अ काउंसलर, तो वो पूरी बात करेंगे कि इंडिया में ही रहना है या बाहर जाना, तो इंडिया के हिसाब से कौन कौन से करियर्स वायबल हैं, बाहर अगर जा सकते हैं तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से बास्केटबॉल, इंडिया में शायद इतना स्कोप नहीं है पर बाहर काफी ज्यादा स्कोप, स्कॉलरशिप्स भी मिल जाती है। इंडिया में कम कॉलेजेस है जिनमें स्कॉलरशिप मिलती है, बाहर बहुत ज्यादा कॉलेजेस हैं जिनमें थ्रू बास्केटबॉल भी स्कॉलरशिप मिल जाती है, ठीक है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, काउंसलर से बात करना, ठीक है। और दूसरा ये है कि काउंसलर विल गाइड यू, तो काउंसलर विल से दैट I don't know exactly what counselor will say. I am thinking that what he or she will say. हाँ, जनरल व्यू बता ये रहे हैं. मिक्स्ड, हाँ ये मिक्स्ड है कि अगर आपको बास्केटबॉल खेलो, ऑन द सेफ साइड आप ये भी पढ़ लो, हाँ, ठीक है। हाँ, ताकि मतलब सिचुएशन सही रहे, ऐसा ना हो जीने मरने की हालत टाइप की हो जाए, ठीक है। हम कंफर्टेबल रहे तो 2 ऑप्शन ले लो, ठीक है। ईदर विल वर्क, जब तक आप 100% श्योर नहीं हो तब तक के। हाँ, मतलब आई नेवर थॉट, आई वाज आंसरिंग द क्वेश्चन कीपिंग इन माइंड दैट पर्सन इज 100% श्योर कि यही जिंदगी में करना है। आई डिडंट थिंक दैट कि हाँ 100% श्योर भी तो नहीं होते ना काफी लोग। हाँ। तो also I had one question कि आप कैसे teach करते हो, मतलब what are your ways of teaching to your students and how different are they from the regular conventional methods? मैं उनको ना एक्स्ट्रा चीजें बहुत ज्यादा बताता हूँ। मैं ये देख लेता हूँ जो फॉर्म होता है उसमें कि स्टूडेंट का नेचुरल इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट्स में,
उन सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं उनको एक्स्ट्रा चीजें काफी ज्यादा बताता हूँ. बेसिकली आई टीच साइंस एंड मैथ्स क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उसमें. ठीक है. तो जिनका बहुत हाँ ज्यादा हाँ इंटरेस्ट साइंस मैथ्स में होता है, जिनका मेजर इंटरेस्ट साइंस मैथ्स में होता है, वैसे ही बच्चे मेरे पास आते हैं. काफी ऐसे भी आते हैं हाँ जिनका मेन इंटरेस्ट साइंस मैथ्स में नहीं है, जो केवल पास होना चाहते हैं. तो उनको मैं इतना बर्डन नहीं डालता. उन पे हम क्लास के बाद 15-20 मिनट बैठ के एक्स्ट्रा चीजों में बात करते हैं. जैसे अभी एक स्टूडेंट जो केवल पास होने के लिए आया था. ठीक है. फिर उससे बातें बातें की तो पता चला ही इज वेरी गुड, ही इज एक्सेलेंट एट स्केचिंग. तो उसने यूं ही जब बात की, एंड ही वाज वेरी अफ्रेड टू टेल इट टू हिज पेरेंट्स कि हाँ नहीं, पेरेंट्स बोल रहे हैं कि कॉमर्स लो, वो नहीं लेने देंगे एंड ऑल दैट. पर उसके वो फिर जब स्केचेस देखे आयरन मैन के, स्पाइडरमैन के एंड ऑल दैट, देन आई टॉक टू हिज पेरेंट्स. उनको बुलाया, फिर बैठे. मैं बोला, सर, कॉमर्स में बच्चा क्या ही करेगा, अभी नहीं फेल होगा, हाँ बाद में फेल होगा, इसका जब इंटरेस्ट ही नहीं है. पर आप देखो ये स्केचिंग में, दिस इज हिज ओन गेम, ही कैन एक्सेल इन दिस गेम. ठीक है. हाँ तो अब उन्होंने अलाउ किया है उसको आर्ट्स लेने के लिए. और उसके बाद मेरा एक दोस्त है जो एनिमेटर, तो आई टॉक टू हिम बिकॉज एनिमेशन का बेसिक स्केचिंग से ही होता है. हाँ हाँ मतलब हाँ वन ऑफ द पार्ट इज स्केचिंग. तो अब हाँ हमने हाँ उसके लिए ये प्लान किया है. अब वो स्केचिंग सीख रहे हैं. देन इन 2 years दैट गाय विल कॉन्टैक्ट हिम. अब वो एनिमेटर बनेगा, तो ही इज हैप्पी. सही है. सही है. So one last question for the session ओके. is how much do you prefer online classes for kids below 5? नॉट एट ऑल. क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? नहीं चाहिए. नहीं. मतलब इधर लुधियाना में हो नहीं पाया पॉसिबल. पर वी वर वर्किंग ऑन एक ऐप पे वर्क कर रहे थे जो ना इनेबल करते हैं एक लोकेलिटी में होम स्कूलिंग इनेबल करते हैं. आपकी कि आवाज जैसे ब्रेक हो फॉर रही है. एग्जाम्पल, लेट मी सी, 1 minute. इज इट ऑडिबल नाउ? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है. हाँ आप ऑडिबल पर आपकी वीडियो चली गई. अरे, आई एम सीइंग बोथ ऑफ यू. यू बोथ आर विजिबल. But we can't see you. आपको शायद वीडियो ऑफ हो गया है. अरे, आई कैन सी यू बोथ. You guys check your But device. we can't. I can see myself too waving my hand. I can see you too. Okay, so people can see you, so I think we'll just continue right now. हाँ. Maybe हाँ तो you आप guys can कंटिन्यू disconnect and कर join लीजिए. back. That हाँ happened to me in the beginning. yeah. The same thing happened to me in the beginning. You guys can press the pause button and then join back. Okay, Done. we got it. We can see you. अच्छा, okay. हाँ तो हाँ, आप what बोल were we रहे थे. talking about? 8 साल के नीचे के बच्चों का हाँ, ऑनलाइन वो एजुकेशन. होम स्कूलिंग वाला. तो बेसिक आइडिया वाज दैट कि ये जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए ना होम स्कूलिंग का मेथड कुछ बनाया जाए. वी वर वर्किंग ऑन इट. 8-9 एजुकेटर्स फ्रॉम लुधियाना डिस्कस कर रहे थे हम लोग. बट वो हाँ फीजेबल और वायबल नहीं हुआ, तो अभी के लिए वो ड्रॉप किया. आगे देखते हैं. पर या आई वांट टू प्रमोट दैट टू कि schools are not necessary. मतलब not necessary हाँ and should not be compulsory. Sorry, they are necessary. हाँ, They should be सही compulsory. है. जिनको ऑप्शन है वो होम स्कूलिंग भी कर सकते हैं एंड वी हाँ प्रोवाइड देम विद समथिंग. ओके. तो ऐसा कुछ है जो बाद में करेंगे. हाँ. Great. So I think anyone interested in learning math and science from Shreyans Dhave can contact him to learn all this, to know what it's really like to be knowledgeable and to be mentally smart. You know the difference, and I think studying under him, you will be conventionally smart also. So Okay.
Devesh says he's coming to Ludhiana to To study. study. A commerce student wants to study science Science and under math. you. Are I'll teach commerce also. Perfect. So thank you so much, Mr. Jhaver, for being with us and uh, Okay. giving us your time. It meant a lot to Thank us you. as a youth, as us Personally, as a personally. youth, I think it's very enlightening also because most people just like marks thing है तो तो फ्यूचर बस नहीं रहेगा हाँ फ्यूचर नहीं रहेगा तो फैमिली को दिक्कत होगी ये वो बस उसके अलावा they can't think Exactly. further. So I think this is very Yeah. important for all of us. So pleasure is all So mine. much. Thanks a lot for having me. Okay, guys. Thank you. Jai Shri Jai Shri Krishna. Krishna. Jai Shri Krishna. Bye. Bye.